Welcome once again, and today we are going to start MCQ series for class 7th. As we have studied chapter integer, so today we will see some MCQs based on our first chapter. So let us start. The first question is on a number line when we add positive integer. So on a number line you can see question on the screen. On number line, ये हमारे पास number line है. This is 0, this is +1, this is -1, and when we add what positive integer, अगर मैं positive integer add करूंगा, so we will move here. If we add positive integer, we will move in this way. So our option is, which option is right? Move to the right. So in this option A is our correct answer. Similarly, question number 2, on a number line when we add a negative integer. If we add a negative integer, let us see negative integer, where we are moving? We are moving towards left. So 1 का A and 2 का B, B, move to the left. Move towards left. Now see question number 3, on a number line when you subtract a positive integer. Now let us have an example. We have 3 as a one integer, we can say positive integer, and now we subtract a positive integer. हम यहाँ से 1, that is again positive integer, we are doing minus. So what is the result? Result is 2. 1 is positive, 3 is positive. When we subtract what? Positive integer from positive integer, the answer is 2. So 3 से हम कहाँ पे आ गए? इस तरफ आ गए. So the answer is, according to this, answer is move towards left. That is our again B option. So third का भी हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? B option हुआ. Now fourth, on number line when we subtract a negative integer. Now we are subtracting a negative integer. Let us see. We have got 3 and we have got -1, and now we are subtracting this. Then this answer is converted into what? This answer is converted into plus. This minus is converted into plus, and we get the answer 4. And 4 is add to this. So according to this answer, move to the right. 4 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हमारे पास हो जाएगा move to the right. That is A. Now fifth question, we can see fifth question. When two positive integers are added, we get again a positive number. 1 plus 1, that is 4. So again a positive number. So we can get 5 ka A. 5 is A. 5A. Now sixth, when two negative integers are added, we again get a negative integer. That is 6 ka B. Let us have an example. अगर मैं -3 है, हमने -2 इसमें ऐड कर दिया. So -3 -2, that is -5. So you can see when we add two minus integers, answer is what? Answer is negative. Now let us move to question number 7. So question number 7 you can see on the screen. A statement is given and a positive integers and a negative integers are added. Means एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमने उसमें नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर दिया, या एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम उसमें एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर दिया. नाउ वी आर एडिंग पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. द रिजल्ट इज व्हाट? इसकी बात करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 10 minus 5, that is 5. So we can say that is positive. But when we talk about this 10 minus 15, that is -5, that is negative. So
वी कैन नॉट से आंसर इज नेगेटिव और पॉजिटिव. It depends on the values. It depends on the values. So our A option is false. A option is false. Now B, additive inverse of -8. Additive inverse क्या होता है? Additive inverse क्या होता है? Additive inverse वो होता है, कोई नंबर है हमारे पास, हम उसमें ऐसा कुछ ऐड कर दें कि आंसर 0 आ जाए. Let us have 8 है हमारे पास, मैंने -8 ऐड कर दिया, so आंसर इज 0. अगेन अगर -8 है तो मैं 8 ऐड करूंगा, सो 8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 एंड -8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 8. सो बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर राइट. बी और सी राइट है. अब तक ए गलत है हमारा. नाउ ओनली डी. फॉर सब्सट्रैक्शन करने के लिए वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर. अगर मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं तो क्या लिखा है, मैं एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देता हूं. देखते हैं, मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं इंटीजर का. ठीक, आई एम सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 5. आई एम सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 5. फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर. देखो ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है. नाउ कैन आई राइट लाइक दिस? तो क्या हुआ, मैं जब सब्ट्रैक्शन कर रहा था तो सब्ट्रैक्शन को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि मैं जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ दूं जो कि पहले सब्ट्रैक्ट हो रहा था. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? दैट इज 7 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 का हमारे पास ए. 7 का ये हमारे पास रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, you can see -4 प्लस -4. ये क्या होगा? ये होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, -8 -4 दैट इज -12. मैं अगर ए की बात कर रहा हूं तो, और RHS में क्या है? -8 दैट इज -8 प्लस 4. ये क्या हो गया मेरे पास? -4. सो विच इज राइट? दिस इज ओके. नाउ हिसाब से ए हमारा फॉल्स हो गया. ए हमारा फॉल्स हो गया. बी देखते हैं. बी में क्या देखा है? -8. ये तो सेम आएगा, -12 आएगा, और इस तरफ का भी सेम आएगा, -4. तो कौन सा बड़ा हुआ? ये भी यही आ रहा है, और ये दे भी रखा है, तो बी हमारा राइट हो गया. देखो बी ऐसे नहीं रखा है ना. अच्छा, इक्वल तो है ही नहीं, और दे रखा है नॉन ऑफ द एबव. नॉन ऑफ द एबव भी रॉन्ग हो गया. सो आंसर बी इज राइट. आंसर बी इज राइट. 8 का बी इज राइट. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स 9th. नाइन्थ कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? देख लेते हैं. 9th का, अगर मेरे पास -2 है और -3 को मैंने प्रोडक्ट किया तो इनका तो प्रोडक्ट 6 हो गया, और ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गए? प्लस. सो विच इज द आंसर? 9 का ए. 9 का ए. 8 का मैंने क्या लिखवाया था? 8 का क्या लिखवाया था? बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स. अगेन अगर मैं यहीं पे 10 कर लूं और यहां पे एक नेगेटिव इंटीजर और ले लूं, लेट अस हैव -1. ये इतना प्लस हो गया है, और मैं अगर -1 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, देन आंसर इज -6. सो विच आंसर इज नेगेटिव? 10th का नेगेटिव मीन्स बी ऑप्शन इज राइट. नाउ 11th की बात करते हैं तो हमको -1 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन दे रखा है. तो अगर मैं ये चीज फॉलो करूं और -1 जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा पॉजिटिव का. ऐसे ही 2 के पेयर में -1 +1 5 टाइम्स बनाएंगे, और जब +1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. सो 11 का आंसर क्या आएगा? ए. 11 का आंसर क्या आएगा? ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 12.
अगर 12 की बात करें, -1 -1 5 टाइम। अब देखो, दो -1 मिलके +1 बना रहे हैं, तो हमारे पास 5 -1 है, तो दो -1 मिलके +1 बना देंगे, +1 बना देंगे। और जो तीसरा वाला है, जो फिफ्थ वन बचेगा, वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास उसको नेगेटिव कर देगा। लेट अस सी इन डिटेल। क्या बता रहा हूं मैं, अगर मेरे पास -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 5 टाइम्स है, ये दोनों +1 बना देंगे, ये दोनों +1 बना देंगे। नाउ दिस रिमेन्स माइनस, सो व्हाट वी विल गेट, -1। व्हाट वी विल गेट, -1। we will get -1, so answer is B, 12th का B, 12th का B। let us see 13th, 2m times 2m is even number। अगर बात कर रहे हैं, ये 5 टाइम्स था, और अगर -1 इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, इवन नंबर्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स, तो जब -1 में मल्टीप्लाई होता है तो 1 बना देता है 1 टाइम्स। और यहां लिखा हुआ है 2m टाइम्स। 2m टाइम्स मतलब m की वैल्यू अगर इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो, जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, ये इवन नंबर्स हैं, मतलब ये नंबर्स, जैसे 1 2 3 4, ये 5 थे। अच्छा, अगर मेरे पास नंबर्स है कितने, 22, मेरे पास नंबर है 22, मेरे पास ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 22 टाइम्स। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर 22 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कितनी बार पेयर बनाएंगे, 11 पेयर्स बनाएंगे, 11 पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जो m है वो पेयर की वैल्यू है, m है यहाँ पे पेयर की वैल्यू है, नंबर ऑफ 1 इवन ही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर व्हाट, आंसर इज अगेन 13 का A, 13 का आंसर A, 13 का आंसर A होने वाला है। अगर मैं 14 की बात करता हूँ, 2m+1, ये इवन नंबर्स ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, -1, दैट इज B। अब मैं 15 की बात करता हूँ, यू हैव -20 और -5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब -20 आपको मल्टीप्लीकेशन, आई होप आपको आता है, -20, जो -20 -5 से मल्टीप्लाई होगा, देन व्हाट विल हैपन, 25 से मल्टीप्लाई होके 100 रिजल्ट करेगा, और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस रिजल्ट आएगा। सो विच आंसर इज राइट, 15 for 15, answer A is right। Now 16, according to this, माइनस एंड प्लस, रिजल्ट इज माइनस होने वाला है, और -1 ही है, करने की भी जरूरत नहीं है, दैट इज बी ऑप्शन, बिकॉज 30 इज ऑफ माइनस एंड 20 इज पॉजिटिव। जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज माइनस। नाउ 17, रिजल्ट यहां पर भी माइनस होना चाहिए, 10 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 200 बनाएंगे और -200 बनाएंगे, तो 17 का आंसर भी हमारे पास, दैट इज बी ऑप्शन। लेट अस हैव 18 में जब कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई करता है, तो आंसर हमारा 0 ही आता है। जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करता है, तो रिजल्टेंट विल बी 0, दैट इज व्हाट, 18 का ए ऑप्शन। 19 की बात करते हैं, तो अगेन ए, क्योंकि 0 से -5 मल्टीप्लाई कर रहा है, साइन कुछ भी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 ही आएगा। नाउ -2 और 1 ये मल्टीप्लाई हुए, -2 और 1 मतलब 2 और 1 मल्टीप्लाई हुए, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आंसर माइनस में आना चाहिए। तो आंसर व्हाट इज आंसर, आंसर विल बी बी। नाउ 21, 1 into 6, वी ऑल नो 21 का आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, ए आने वाला है। 22 अगेन -4, दैट इज बी, 22 का बी। 23
तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन एक टर्म जीरो है, तो ये जीरो दे देगा हमको 23, एक जीरो दे देगा, तो जीरो किसमें है, दैट इज ए, दैट इज ए, दैट इज ए, हमको एक जीरो मिल गया है। अब हम 24 देखते हैं। द इंटीजर वॉज प्रोडक्ट विद -1 इज जीरो, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। 24 यहां लिखते हैं, 24 के साथ कोई ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके जीरो दे दे तो क्या हो सकता है, ओनली जीरो, और जीरो किसमें दे रखा है, सी में। 25th, द इंटीजर वॉज प्रोडक्ट इज -1, द इंटीजर वॉज प्रोडक्ट इज -1, तो आप देख लो -1 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तभी -1 आएगा, तो आंसर क्या है, 1 किसमें दे रखा है, 1 इज बी, 1 इज बी। 26 10 को डिवाइड किया 5 से, 10 को डिवाइड किया 5 से तो -2 एंड -2 इज वेयर, सी ऑप्शन, भाई 10 को डिवाइड किया माइनस से, 10 को डिवाइड किया माइनस से, तो माइनस तो आ जाएगा, और 10 5 ज़ा 2। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 27 अगेन -3 डिनोमिनेटर में है, -6 न्यूमरेटर में है, सो व्हाट इज द रिजल्ट, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर इज 2, सो 27 द आंसर इज बी, 27 आंसर इज बी। 28 आंसर इज -5, दैट इज what, that is B, that is B। 29 -9 को जब -1 से डिवाइड किया जाएगा माइनस कट जाएगा, आंसर 9 आने वाला है, तो 29 का आंसर हमारे पास क्या हो गया, 29 का आंसर हमारे पास हो गया है what, 29 का आंसर हमारे पास हो गया है B। नाउ 30th क्वेश्चन, लेट अस सी 30th क्वेश्चन। हाँ, what should be the value of x, what should be the value of x, what should be the value of x। अब आप बताओ मैं यहाँ पे क्या डिवाइड करूं किससे कि आंसर 16 आ जाए। सो यू नो, हम किसी नंबर को अगर किसी से डिवाइड करते हैं और आंसर वही डिविडेंड वही आता है, तो यहाँ पे हमको 1 रखना चाहिए, यहाँ पे 1 रखना चाहिए। 1 किसमें है, दैट इज ए, 30 का ए हो गया आंसर हमारे पास, 30 का ए। 31 -50 को हमने डिवाइड किया किसी नंबर से और आंसर 1 आया है, इसका मतलब यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड किया है, सो आंसर -50 आना चाहिए, यहाँ पे -50 ही आना चाहिए, सो -50 इज व्हाट, सी, -50 इज सी। नाउ 32 8 आया है, इसका मतलब x की जगह मुझे 8 रखना पड़ेगा, और 8 किस में है, 8 इज ए, 8 इज ए। 32 में 8 आना चाहिए। 33 एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो नंबर जोड़ने पे जो हमको 0 दे दे, तो क्या होगा, एडिटिव 0 हो जाए मतलब, सो दैट इज 0, दैट इज 0। 33 इज व्हाट, सी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, इंटीजर टर्म्स में 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 1, दैट इज 1, मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर दे रहा है, सो दैट इज 1। 34 का क्या है, 34 का ए, 34 का ए। 35 जब हमारे पास 3 नंबर है और हमने इसको अलग अलग ढंग से मल्टीप्लाई किया है, ए इंटू सी, और जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और बाद में ए इंटू सी, ए इंटू 5 प्लस ए इंटू सी किया है, तो ये क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखा रही है। क्या दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये किसमें दे रखा है, सी में। 35 का सी, 35 का सी ऑप्शन। एंड नाउ वी आर रिमेंड विद ओनली 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से ही हमारे पास बचा हुआ है, वो क्वेश्चन दैट इज लैंग्वेज क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। मनी इज डिपॉजिटेड 2000 रुपीज इन अ बैंक अकाउंट, 2000 रुपीज जमा किए, दैट इज ओके, 2000 रुपए उसने जमा किए। हाँ, सो विड्रॉज 1000 फ्रॉम इट, और 1000 निकाल लिए, वेरी नाइस। द नेक्स्ट डे फाइंड द बैलेंस इन मनीज अकाउंट, तो क्या है, 2000 जमा किए थे, 1000 निकाल लिए, आंसर कितना आएगा, 1000। विच ऑप्शन इज 1000,
Which option is 1000? We have to see the answer for 1000. So which option is 1000? Let me see. C option is 1000. Option C. With this, our MCQ based on integers has finished. Now I hope you have enjoyed the session. काफी easy questions थे. See you in the next video.